phonics and phonetics is phonics especially is not a new name, right? It is quite known and it has been used throughout Pakistan since last several years. And I still remember the time when we used to mention or when we used to conduct the workshops on phonics. Various cities of Pakistan, we were asked a question that what the phonics is. But now if we teach or if we talk about any reading method, so we are also again asked that what the other method rather than phonics, right? इसके अलावा और कौन सा method है, ठीक? तो as being experienced yourself, what do you think? What is phonics and what is phonetics? क्या है ये दोनों चीजें? Phonics are the individual letter sounds, and phonetics are when you combine some different letters to make a new sound out of them. Okay. Phonetics is a method of teaching. Phonetic is the method of teaching. And phonics are the individual letter sounds. Phonics are the individual sounds. Okay, that's good. Yes. Some other examples? Some other views? Teaching how to read through sounds, basically. Teaching through how to read through sounds. Okay. That's good. Any other? And it makes reading much easier. Yes, it makes reading much easier. Okay, that's really good. It makes reading much easier. That's good. Yes. Phonics and phonetics. So inshallah at the end of this workshop we will come to know the difference between both and as well as the depth of these both terms, right? And inshallah we will come to know that how we can teach, how we can use this method, right? This method or these methods, how we can use this method to enhance the reading skills of our students, especially those who are not interested in reading, right? Who are afraid of reading. So inshallah we'll come to know the different strategies, different techniques of this method. Okay, तो कुछ जवाबात मुझे यहाँ से मिले. I got some answers कि reading is a sound of it is a science of sounds, right? Method of reading, right? Okay, इसके अलावा आप सबके mind में you must have been thinking some answers in your mind, aren't you? Yes. Right, you are thinking. Yes, you must have an answer in your mind, right? आप सबके दिमागों में, आप सबके जहनों में एक ना एक आंसर है, लेकिन एक खौफ, एक fear of answer, जिस तरह fear of rejection होता है इसी तरह fear of answer भी होता है. और वो fear ये होता है कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए. अगर यही सवाल आप अपनी क्लास में अपने बच्चों से पूछते, right? If you had asked this question in your class, so or in an easy question or any question, और उस पर आप ये कहते हैं अपनी प्री प्राइमरी क्लासेस में, उसमें स्पेशली प्री प्राइमरी क्लासेस, और उनसे कहते हैं कि कौन कौन इसका रिप्लाई करेगा, तो कितने हाथ उठते? I guess all of them, because yes, all of them, perhaps all of them. सारे बच्चे हाथ खड़ा कर लेते, चाहे उन्हें आंसर मालूम होता या नहीं होता. They are not even scared of giving wrong answers. Yes, yeah, because they know the reason is exactly the reason is because they are not afraid of giving wrong answers. Giving wrong answers. They don't have any wrong answer, or they don't have any fear of rejection, right? They don't have any fear of rejection कि उनका जो fear of rejection को इनको reject कर देगा. So first thing of this workshop, you must learn that remove this fear. जी, what is phonics and phonetics? क्या है जी? किस बला का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? Phonics and phonetics. Phonics sounds है. Yes. Phonetics techniques है कि produce कैसे करता हूँ. That's good. That's good. Phonics sounds हैं और phonetics वो techniques हैं जो sound को produce करती हैं. That's wonderful. शाबाश, very good. और कोई आंसर? Classification of speed sound. Classification of speed sounds. ये किसकी definition है? कौन सी? Phonics की? Phonetics की. That's good. Okay. Classification of. Good. ये आंसर पहले भी था ना माइंड में? Yes. Okay. होता है हमारे यहाँ जो है ना. अच्छा, होता ये है कि जैसे जैसे हमारी लर्निंग हम ग्रो करते हैं, जब हम सब प्री प्राइमरी छोटी क्लासेस में थे, मैंने तो प्री प्राइमरी नहीं पढ़ी, प्राइमरी से पढ़ी, उस वक्त हमारे दिमाग में कोई फेयर नहीं था. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे टीचर्स ने, हमारे बड़ों ने, हमारे साथियों ने ये खौफ बिठाया कि यू आर नॉट राइट ऑल द टाइम, राइट? डरो डरो डरो, ऐसा हर वक्त हाथ ना उठाया करो, डरो, कुछ बोलो नहीं, बोलते वक्त पहले सोचो, राइट? पहले तोलिए फिर बोलिए, और हम आज तक उस तोलने में लगे हुए हैं, राइट? तो इन स्पेशली इन माई वर्कशॉप रिमूव दिस फेयर. ठीक है, गलत आंसर आपका होगा, यू विल बी अप्रिशिएटेड बिकॉज मिस्टेक्स आर द पोर्टल ऑफ डिस्कवरी, राइट? मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट. सही है. ओके जी, लेट्स सी. Phonics is in fact a method of teaching people reading.
Phonics is in fact the method of reading, right? Method of reading. Method of reading, it means the teaching method of reading is called phonics, right? And phonetics is the study of classification of speech sound. इसकी जो study है, this is called phonetics, right? Phonics is the method of teaching reading, right? Just like b, at, bat, k, at, cat, like this. This is called phonics method, right? And phonetics is the science of phonics. उसके पीछे जो study है, the study is called phonics is only the branch of phonetics. एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला होता है WIIIFM. इसका मतलब होता है what is in it for me, right? इसका मतलब होता है what is in it for me का मतलब होता है कि इस लर्निंग में, इस लेक्चर में, इस वर्कशॉप में, इस ट्रेनिंग में, इस वीडियो में, इस डिस्प्ले में मेरे लिए क्या चीज़ है, राइट? तो इसमें आपके लिए क्या चीज़ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी चीज़ है, उसे आप पिक करेंगे और उसके बाद उसे अपने लेवल पे इस्तेमाल कर लेंगे. क्लियर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, राइट? ये चीज़ पता चल गई. हम बच्चों को यहाँ लेकर जाना चाहते हैं. सेकेंडरी जो टीचर्स हैं आपके पास क्या होती हैं? चैप्टर्स होते हैं. आप चाहते हैं कि बच्चा वो चैप्टर्स रीड कर सके. चैप्टर्स में क्या होते हैं? पैराग्राफ्स होते हैं. पैराग्राफ का मतलब टेक्स्ट होता है, राइट? ये टेक्स्ट होता है. हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा टेक्स्ट रीडिंग कर सके. टेक्स्ट रीडिंग के लिए जरूरी है उसने सेंटेंस रीडिंग आती हो. टेक्स्ट इज मेड ऑफ सेंटेंसेस, राइट? जो टेक्स्ट है वो बनता है सेंटेंसेस से, और सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स, राइट? तो ये हमें याद रखना है. टेक्स्ट, सेंटेंस, वर्ड, और वर्ड किससे बनता है? लेटर से, राइट? क्लियर है? ओके, याद रहेगा ये. दिस इज टेक्स्ट, दिस इज सेंटेंस, ठीक? वर्ड, इसको याद रखना है आप सबने, ठीक? ओके, प्री प्राइमरी, जिस तरह प्राइमरी क्लासेस से पहले प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से फोनिक्स से पहले, फोनिक्स टीचिंग से पहले प्री फोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट? और प्री फोनिक एक्टिविटीज़ ये होती हैं जिसके अंदर सबसे पहला साउंड है कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड. कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड हमने देना होता है बच्चों को कि एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर साउंड. अभी आप सब गौर से सुनिए. Talking from here, there is a dragging at that side. That's good. I'm catching up these mugs. Yes, yes, right. These are all the sounds, right? ये सारे sounds आप सुन रहे हैं, right? Some sounds you are listening consciously और some unconsciously. ठीक है, कुछ sounds को आप गौर से सुन रहे हैं, ठीक है, और कुछ को ऐसा होता है कि एक sound आपको आ रहा है उसे आप गौर से सुन रहे हैं और उसके साथ साथ yes, right? उसके साथ साथ जो यहाँ से चर चर उसकी आवाज़ आ रही है वो भी आपके कानों में जा रही है, लेकिन उसे हम अवॉइड कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, लेकिन वो हम उसे सुन रहे हैं, ठीक है? ओके, तो एक एक्टिविटी होती है नॉकिंग की, राइट? नॉकिंग की एक्टिविटी करवाई जाती है, और उस नॉकिंग एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि हमने बच्चों को ये चीज़ करवानी होती है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स पर्टिकुलर साउंड. आप सब ज़रा गौर से सुनिएगा. अच्छा, इसका यस, इस जेस्चर का मतलब तो ये होता है कि ईट क्वाइट एवरीवन. हाँ, ओके, लेकिन दिस इज द साउंड ऑफ नॉकिंग. ओके, नॉकिंग अगर साउंड का है तो दिस इज ऑल्सो नॉकिंग, बट बोथ साउंड्स आर डिफरेंट, राइट? दिस इज द साउंड ऑफ डाइस, राइट? दिस इज द साउंड ऑफ डाइस. दिस इज द साउंड ऑफ table. This is the sound of table. This is the sound of chair. Okay? तो इस तरह से through this activity we give the concept of sounds. Clear है? अब हम इसको थोड़ा सा और organized way में कर लेते हैं. आप सबने साउंड सुने? Right? Okay. This is the sound of a glass. This is the sound of This is the sound of a table. Okay, now please close your eyes. Close your eyes, please. Eyes closed हैं? आधे घंटे तक क्लोज रखिए. अल्लाह शिफा देगा. Okay, जी, close your eyes, please again. Okay. Glass. Snap. Snapping of fingers.
Tapping of feet. That's good. Open your eyes. That's good. Give the big hand to yourself. तो एक कॉन्सेप्ट था इसमें, एक एक्टिविटी थी नॉकिंग की. द सेकंड इज ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स. ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटी, राइट. इसमें आप ये करें कि ग्लास लीजिए और क्लास में इसको ड्रॉप कर दीजिए. राइट राइट. डस्टर, मार्कर, डिफरेंट चीज़ें उनकी बताएं कि देखिए एवरीथिंग इज डिफरेंट साउंड. इसी तरह से सिमिलरली साउंड्स ऑफ सराउंडिंग की साउंड्स जो भी आपने सुनी, राइट. इसी तरह से साउंड्स ऑफ बर्ड्स, राइट. इफ पॉसिबल बच्चों को अगर पॉसिबल हो, ठीक है, लॉन में ले जाएं, बाहर ले जाएं, या उनको बाहर बर्ड्स की आवाज़ सुनाएं. नॉट पॉसिबल, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी तरह वीडियो पे सुना दीजिए, राइट. इसी तरह से साउंड ऑफ व्हीकल्स, सेम एक्टिविटी उस तरह से करवाइए. अब ये कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड्स में ही इसी तरह से कुछ साउंड्स हैं, और ये साउंड्स हैं यहाँ पर. एक साउंड है टैप टैप का, राइट. यस, एवरीवन प्लीज स्टैंड अप. वी विल परफॉर्म द एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज, राइट. ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज वी विल परफॉर्म, हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है. यस, टैप टैप टैप. These are the sound of taps. Once again. आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका टैप सिर्फ ऐसा हो रहा है. हाँ. Okay. Now, the sound of licking sound. Yes, start. That's good. अब चैलेंज ये है आप लोगों ने कि हंसी कंट्रोल करनी है, हंसना नहीं है. ओके. जो हंसेगा वो फंसेगा, और जो फंसेगा उसको पनिशमेंट होगी. ओके. जो पनिशमेंट होगी वो फिर कुछ भी हो सकता है कि आपको उठाया जाएगा और आपसे कोई कपलेट सुना जाएगा, कोई अच्छा कोटेशन सुना जाएगा, या कोई भी अच्छी चीज शेयरिंग की जाएगी. ओके. धीरे धीरे इसको स्टेप्स बनाए हैं. तो पहला है क्लैपिंग. आप हाथ पूरे फैला करके जो ऐसे इस तरह से की जाती है, जोर जोर से करिए. इस तरह से ताली मारने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है. दूसरा स्टेप है इसमें ब्रीदिंग. हाथ आगे निकालिए. अच्छा, लंबा सांस लीजिए, होल्ड कीजिए. अभी पहले नकली हंसेंगे और वो असली हंसी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है जब हम मिलके हंसते हैं. रेडी? 1 2 3 गो. चलिए, एक एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर. क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब की लस्सी 2 गिलास पकड़ेंगे और 2 बार मिक्स करेंगे. इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड बिल लाफ्टर. तो आप एक हाथ उठाइए ऐसा, और ऐसा समझिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, उसको देख के हंसेंगे. रेडी? एक दूसरे को दिखाना. चलिए, अभी अगली हंसी है. जस्ट आप, मैं क्यों हंस रहा हूं मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों हंस रहा हूं. ओके, 1 2 3. चलिए, अभी झगड़ा भी करेंगे तो हंसते हुए करेंगे. रेडी? चलो, 1 2 3 गो. अच्छा जी, मैंने सिर्फ आपको डराया था. मैंने हरगिज, मेरा मकसद ये ना था कि आप लोग ना हंसें. और इसमें से जो लोग हंसे, इसका मतलब ये होता है वो लोग होते हैं जो दिल के बड़े नर्म होते हैं. गिव द बिग हैंड टू दोज हु लॉस्ट. आपने पहले मना करके फिर बहुत हंस रहे थे, फिर हम भी ये तो अब हंस लिए ना. जनाब, द नेक्स्ट इज एनिमल साउंड्स. राइट. क्लास में पॉसिबल, इफ पॉसिबल, बच्चों को एनिमल साउंड सुनाइए. सपोज चिड़िया का साउंड.
इसी तरह से हॉर्स का साउंड, यस राइट, एलिफेंट, ओके। इसी तरह से किटन साउंड, नाउ cat sound, meow, 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 and now this is tom sound, right? Tomcat, okay. Like this you will produce some sounds. आप इसी तरह से कुछ sounds जो है वो produce करेंगे, right? ताकि इससे, और जिस तरह से मैंने किए हैं similarly आप बच्चों को इसी तरह से concepts दीजिए. Especially you can do these type of activities when you see that your class is feeling bored, right? And your class is not active. You can make them energetic by अप्लाइंग दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स, राइट। तो इसके जरिए से आप लोगों की क्लास में जो है वो बच्चे एनर्जेटिक हो जाएंगे और वो अटेंटिव हो जाएंगे उस चीज़ के लिए जो आप करवाना चाहते हैं। आंसर में वन थिंग, मुझे एक आंसर कीजिए, बच्चे पढ़ना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। आप लोग पढ़ाना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं? हाय, ये दिल की आवाज़ है। मैंने आके यहाँ इतना गेन किया कि कुछ वाकई वो चीज़ें हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं, और जिस लेवल पे हम बैठे होते हैं, हम वो टीचिंग लेवल से गुज़र के, तो हमें लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन यकीनन छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको उनके फॉर्मेट पे लेके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत, इट्स टू मच हार्ड एंड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं कहूँगी कि इनके लिए हर चीज़ जो एक बेसिक से लेके आगे तक उनको लेके जाना और उन्हें पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे इनकी ये वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी, इन्होंने हमें, कहते हैं, आज ABC का मतलब बता दिया, सिखा दिया कि किस तरीके से हम अपने बच्चों में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं, ऐसे सेशंस हर मंथ में अगर पॉसिबल है, नहीं तो ट्वाइस इन अ ईयर तो ज़रूर होने चाहिए, और नॉट ओनली फॉर मॉन्टेसरी सेक्शंस बट आल्सो एलिमेंट्री क्लासेस एंड हायर सेक्शन। मैं चाहूँगी कि ऐसे सेशन ज़रूर होते रहें। थैंक यू। बिलाल रहमान फ्राम हेरा पब्लिक स्कूल, बराको, इस्लामाबाद। तिफली जो है इस तरह के प्रोग्राम करती रहे, इस तरह की वर्कशॉप होती रहें, ताकि टीचर्स के स्किल्स आएँ, ताकि वो सीख सकें किस तरह हमारे मतलब बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, किस तरह मैनेजमेंट करनी है। Assalamu alaikum. I am from a Light School Eagle campus, and the workshop was very good. The trainer was excellent, and they have teaches us very good about English and phonics and phonetics and all the things. It was really good and nice, and I would like to come on this workshop again and again, and it was very good workshop. Assalamu alaikum ji, I'm Amina Shabir and I'm from Mrs. Montessori High School, Rawalpindi, and basically we 6 people are here, and it was very informative workshop. He conducted in such a better way. He was bilingual in between, and that basically we enjoyed a lot. And there are many strategies that he explained. There were various activities that will be definitely implementing in our school, and good luck for you all. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। हम सारे SLS स्कूल से यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छी मालूमाती वर्कशॉप है, जिसमें हम सब लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी है, और हम जाके इसे अपने स्कूल में इस्तेमाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीना खातून, H13 कैंपस इस्लामाबाद कॉन्सेप्ट स्कूल। आज हमें यहाँ पर जो है वो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप दी गई है फ़ोनिक के हवाले से। बहुत कुछ यहाँ पर हमें सीखने को मिला है, किस तरह हमें बच्चों को गेम्स के ज़रिए, किस तरह बच्चों को जो है वो हमें सिखाना है, वर्ड्स के ज़रिए, फिंगर्स के ज़रिए बच्चों में जो है वो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बहुत इन्जॉय किया है हम सब ने यहाँ पर, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिस तरह सर हमें बता रहे थे, सब कुछ जो हम पिक कर रहे थे, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे स्कूल में भी हम बच्चों के साथ ये सब कुछ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। एंड थैंक यू सो मच ये वर्कशॉप के लिए। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप जो हैं वो हर वीक या हर मंथ होनी चाहिए, ताकि टीचर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और जो स्टूडेंट्स हैं हम अपना कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स तक डेवलप करें। थैंक यू सो मच। That they invited me as a guest of honor, and I feel humbled and honored to be here. And I really like to talk with teachers,
because I'm not just teacher by profession, but I'm teacher by choice. Usually it is considered that when someone cannot do anything, then they can become a teacher. But I totally refuse this idea of the people, because I used to say this to my students also, that teaching is an art, and every person cannot have this art of teaching. But unfortunately, in our society, there are teachers who are not, teacher by choice. They are just doing this profession because they have to just earn money. So maybe because of those teachers, we are stigmatized. I hope that all of you are interested teachers and you are real artists, and because of this interest, you must be here, because here you're learning for better teaching. And Tifli is also, doing this great work of, you can say, grooming, nurturing young children. And then for that, as you know, they're using holistic approach of giving trainings to the parents as well as to the teachers, because every child is influenced by their parents and most importantly by their teachers, with whom they spend lots of their time. So I hope that you people have learned from this training, and I wish you good luck for your future, and always keep your motivations high for learning more and more, because once you are done with your degree, it doesn't mean you are done with learning. Learning should go, till the end of our lives. So with this, thank you again, and good night.